Good morning, students. So, in last class, I was explained the exercise 7C, and I have explained the some questions from the exercise 7D also using middle term break. That is also called splitting method. So, I was given till question number 5th. I hope you have tried. So, today I will explain some more questions from this exercise 6th. I am going to explain that is given factorize y square plus 19y plus 60. So look the process, dude, if you not understood, once again I am going to explain its method, how you will solving it. y square का कोफिशिएंट मींस a लेना है 1 और c के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ 16 to 1 16. देन टेक इट्स टू फैक्टर जिसका प्रोडक्ट 60 हो, स्प्लिट इन टू पार्ट्स whose product must be 60 and इस साइन को देखना है, प्लस कर दे तो 19 हो जाए. सो ऐसे फैक्टर्स लेना है. तो सम टाइम ओरली आ जाता है, ओरली नहीं आ रहा है तो मेक इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन देन मेक इट अरेंजमेंट. सो लाइक ओरली यू कैन गेट 15 for the 60 and 15 plus 4 19. so 19y चाहिए, therefore क्या रखना होगा 15y plus 4y. so at the place of 19y I can put 15y plus 9y. That's why it is called the splitting method, because इस 19 को हमने split कर दिया. So देखो अभी 19 को हमने split किया, so it becomes y square plus 15y plus 4y plus 60. To make its factors, take first two and this last two always. First two together लेना है और इसमें common करना है. What is common here? y. And if you take y common, remaining term देखो y square से y common तो y मिला, प्लस हमने यहाँ से y कॉमन किया, व्हाट इज रिमेनिंग 15y प्लस 15. एंड इन लास्ट टू टेक कॉमन, व्हाट इज कॉमन 60 देखो 4 से डिवाइड होता है तो 4 कॉमन हो रहा है, राइट ना. एंड इफ यू टेक 4 कॉमन तो यहाँ मिलेगा y प्लस, अभी 60 को 4 से डिवाइड कर लो, कॉमन किया ना, डिवाइड हो गया तो ये मिला 15. एंड when you solving using this method always you will get these two parts same, तभी ये फैक्टराइज होगा. तो ये सेम सेम आना चाहिए, अगर ये डिफरेंट आ रहा है मींस समथिंग रॉन्ग. सो y plus 15, what is common y plus 15. and if y plus 15 को हम कॉमन करें तो मिलेगा क्या y plus 4. so these are the factors of this question number 6, y plus 15 into y plus 4. okay, next question number 8. so look question number 8, what is given question number 8. question number 8 is given q square minus 10q plus 21. okay, we need to solve it, factorize it. अभी देखो इसको फैक्टराइज करना है. to factorize it, what we need to do, we need to multiply a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है. what is a1, ये देखो 1 c 21 तो 21 हो गया. 21 के 2 फैक्टर लेना है जिसका एडिशन 10 हो जाए, प्रोडक्ट 21 एंड सम करे तो 10 आ जाए. तो सम टाइम आई एक्सप्लेन यू विल गेटिंग द ओरली. व्हाट इज 7 3 जा, तो 7 plus 3 10, 7 3 जा 21. देखो प्लस q आना चाहिए तो ये देखो 7q plus 3q. तो 7q plus 3q इक्वल टू 10q. बट इफ दिस साइन इज माइनस, अगर ये माइनस साइन होगा मींस रिक्वायर्ड है माइनस 10q. हाउ यू विल गेट माइनस 10q, इसमें देखो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 7q एंड दिस इज माइनस 3q. या फिर क्या रखना, यहाँ ब्रैकेट में रखो 7q प्लस 3q प्लस 21. ओके, प्लस 21. फिर आफ्टरवर्ड्स ये होगा और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा. दोज ऑफ यू अंडरस्टूड डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज इन दिस वे यू कैन राइट, ब्रैकेट में रखो माइनस, देखो ये हुआ माइनस 7q माइनस 3q plus 21. first two and last two. what is common in first two, it is q is common. and if you take q common so remaining हुआ देखो q minus 7. and in the last two what is common, minus यहाँ है तो minus common होगा और 3 मिलेगा q minus 7. करेक्ट ना. what is common again, q minus 7 and q minus 7 if common करें q minus 7 into q minus 3. so these are the factors. जब इसको मल्टीप्लाई करो you can verify your answer, इसका प्रोडक्ट निकालो you will get that term only. करेक्ट ना. so
So this is question number 8. Next question, question number 10. I will explain next question. Question number 10. Question number 10 is given x square minus 10x प्लस 24. अभी 24 के टू प्रोडक्ट इसको प्लस कर दो, क्या आ जाए 10. टू फैक्टर्स ऑफ 24. देखो 24 जिसका प्रोडक्ट 24 होना चाहिए और ऐड क्या हो 10. तो 6 4 जा 6 प्लस 4 10. सो एट द प्लेस ऑफ 10x आई कैन राइट 6x प्लस 4x. और देखो माइनस साइन हो, ये जो प्लस में है इसको माइनस कर देना है, माइनस 6 माइनस 4. So that's why if you understood directly, you can put it x square minus 6x minus 4x plus 24. First two and this last two. What is common in first two? X. So if you will take x common, अगर इस first two में हम x common कर लें तो देखो क्या मिलने वाला है. x common करेंगे क्या मिल रहा है, x minus 6, करेक्ट ना. And in last two जो minus 4 common हो सकता है, करेक्ट ना. 24 4 से डिवाइड होगा, सो 4 कैन बी टेकन कॉमन. माइनस कॉमन करेंगे, साइन चेंज होगा, हियर x और देखो ये साइन हो गया माइनस एंड दिस इज 6. सो वी आर गेटिंग सेम. सो देयरफॉर फैक्टर्स आर x minus 6 into x minus 4. So there are the x minus 6 and x minus 4 are the factors. Okay. Next question number 12. Question number 12 is given x square minus 17x plus 16. अभी वो टू फैक्टर ऑफ 16 जिसको ऐड करें तो क्या होना चाहिए 17. So 8 2 जा, so many factor you will try but you will not get because 16 into 1. तो 16 and 1 लेना होगा. 16 plus 1 17 होगा and 16 1 जा 16. 16 plus 1 17. So therefore at the place of that 17 we can put 16 plus 1 और ये साथ में x है तो 16x plus 1x और ये माइनस साइन हो. I have explained due to this माइनस क्या हो जाता है साइन चेंज. तो क्या होगा minus 16x and minus 1x plus 16. Okay, then first two and last two. What is common in these two? X. क्या मिला? X minus 16. Then again common minus. यहाँ पे देखो कुछ नहीं common है तो 1 common करना होता है 1. Right ना? So I can get minus 1 common. What is remaining? Sign यहाँ change होगा x और ये हो गया minus 16. So again x minus 16 common. X minus 16 into x minus. So hence it is factorized. This is question number 12. Next question, question number 14. I will explain question number 14. Question number 14 is given. Question number 14 is given x square minus 22x plus 117. X square minus 2x. X square minus 2x. Minus 2x and 22x. Minus 22x. Sorry. Minus 22x plus 117 plus 117. So plus 117. 117 के two factors लेना because this is 1. So this is a large number. So easily orally you cannot get it. If then factorize it. So इसका prime factor करो. So here I will explain how can you make this 117 का prime factors करो. It is divisible by 3, right ना. 3 से divide होगा. 3 3 is 9 और ये देखो over 29. फिर से 3 होगा 30. 2 फैक्टर लेना, इसको प्लस करो 22 आ जाए. तो 13 and 3 is 9. 13 plus 9 22. So at the place of 22 I can put 13 plus 9 और साथ में माइनस साइन इसलिए होगा minus 13 minus 9. So this is x square minus 13 and take x also minus 13x minus 9x plus 117. Then first two and this last two. What is common in first two? x common होगा ना, x common करेंगे. देखो यहाँ मिला x minus 13 और इसमें क्या कॉमन हुआ minus 9. What is remaining? x minus 117 को 9 से डिवाइड करो. देखो 9 से डिवाइड हो गया तो क्या रिमेनिंग हुआ 13. So x minus 13. What is again common? x minus 13 into x minus 9. So this is the required factorization of this question. So we got the factors x minus 13 and x minus 9. This is question number 14. Next question number
16. Please given factorize x square plus x minus 132. अभी देखो 132 जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, देखो माइनस साइन है, सो डिफरेंस मस्ट बी 1। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करें, ऑलवेज यू नीड टू लुक दिस साइन। अभी देखो यहाँ माइनस वाला क्वेश्चन आ गया, इफ दिस माइनस साइन सो डिफरेंस 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 तो 1 मिलना चाहिए। 132 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से देखो डिवाइड हुआ, राइट ना, 2 6 जा और ये फिर से 6 मिलेगा, 2 से फिर से कर दो 33 आया। अभी भी देखो नहीं आ रहा ऐसा डिफरेंस, फिर से 2 से कर लिया, 3 से करोगे ना 11, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 11, 12 minus 11 equal to 1, so we can get it ना। तो at the place of 1x क्या रख सकते हैं, 12x minus 11x। तो अगर हम पुट करें x square plus 12x minus 11x minus 132, करेक्ट ना। देखो 1 के प्लेस पे 12 minus 11 रखेंगे और x मल्टीप्लाई कर दो 12x minus 11x, करेक्ट। अभी देखो फिर से सेम मेथड, ओनली क्या डिफरेंस हुआ, हियर प्लस था तो ऐड करने से मिलना चाहिए दिस फैक्ट, दिस कोएफिशिएंट, एंड इफ दिस साइन इज नेगेटिव सो इसका डिफरेंस ये नंबर आना चाहिए 1, करेक्ट। यहाँ पे 1 हो गया। सो फर्स्ट टू व्हाट इज कॉमन, x, व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस देखो 12 मिलेगा और यहाँ कॉमन हुआ माइनस 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चेक कर सकते हो, जब डिवाइड 11 कॉमन करो, x माइनस कॉमन किए प्लस हो गया, डिवाइड करो देखो ये 12 मिला, राइट ना। सो therefore factors are x plus 12 into x minus 11, correct na। So these are the factors. Next question number 18. Next question number 18, and look what is question number 18 is given. Question number 18 is given y square plus 7y माइनस 144। तो सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ माइनस है, वी नीड टू टेक टू फैक्टर ऑफ, देखो ये 1 आ रहा है इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी नंबर सो डोंट फॉरगेट इट, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट। सो 1 into 144, 144, टू फैक्टर ऑफ दिस, इसका डिफरेंस 7 आ जाए। सो डू हियर फैक्टराइजेशन 144, 2 से डिवाइड करोगे 7 2, फिर 2 से किया 36, अभी देखो नहीं हुआ, एक बार और करके देखो 18, 2 2 the 4 2 the 8, 18 minus 8 से नहीं मिलने वाला, राइट ना। तो अगेन हम करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, देखो ये 3 से करो या 2 से कर लेते हैं, ये देखो 9 हुआ, डिफरेंस क्या आना चाहिए 7, 2 2 the 4 2 the 8, 8 2 the 16 minus 9 कितना होगा 7, so 16 minus 9, 16 minus 9 रखना है, y है तो 16y minus 9y, so put here y square plus 16y minus 9y minus 144, then take first two and this last two, first two में कॉमन क्या आ रहा है, what is common y, what is remaining y plus 16, and then next two, what is common in the next two, you will get minus already होगा और यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, करेक्ट ना, 9 से क्योंकि 144 डिवाइड होगा, y plus 144 को 9 से डिवाइड करो, you will get 16, so y plus 16, करेक्ट। so y plus 16 common again हुआ into y minus 9, so this is y plus 16 into y minus 9, okay, so these are the factors. This is the question number 18. Next question number 20. Question number 20, it is given y square plus y माइनस 72, अभी देखो 72 के टू फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सो हाउ कैन वी गेट फैक्टराइज दिस 72, 2 से डिवाइड करो तो ये हुआ 36, फिर से 2 से करेंगे 18, देन अगेन बाय 2 विल गेट 9, बीच में ट्राई कर सकते हो, जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, 2 2 the 4 2 the 8, 8 और 9, 9 minus 8 क्या होता है 1, so difference 1, राइट ना। So at the place of 1y क्या रख सकते हैं 9y minus 8y, so at the place of 1y put 9y minus 8y minus 72, first two and last two, what is common in the first two, y, correct, and if y common तो y plus 9, देखो नेक्स्ट में minus 8 कॉमन हो सकता है ना, y 72 को 8 से डिवाइड करो 9 होगा और साइन प्लस हो जाएगा तो प्लस 9, what is common y plus 9
करेक्ट ना. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. these are the factors. ये क्वेश्चन नंबर 20 था. नेक्स्ट क्वेश्चन we'll look question number 22. Question number 22. And question number 22 is given p square minus 4p minus 77. इसको फैक्टराइज करना है. You need to take, देखो ये 1 है और ये 77, तो प्रोडक्ट क्या हुआ 77. टू फैक्टर ऑफ 77 जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, इट्स डिफरेंस मस्ट बी 4. इसका डिफरेंस 4 होना चाहिए. तो देखो सम टाइम ओरली आ जाता है. 77 के टू फैक्टर्स हमको फाइंड आउट हुए 11 into 7. 11 7 जा 77. एंड व्हाट इज इट्स डिफरेंस 4p. सो लुक हियर, इसका मतलब यहाँ हमको रखना होगा 11p minus 7p. बट डियर स्टूडेंट, वन मोर चेंज इज गोइंग टू हियर, बिकॉज दिस इज बिकम्स नाउ नेगेटिव. इसके पहले ये देखो ये सब में प्लस था, अभी यहाँ माइनस हो गया. तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है. जब ये हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस और ये साइन हो जाएगा प्लस. मींस एट द प्लेस ऑफ minus 4p व्हाट कैन यू पुट minus 11p plus 7p. जिसको सॉल्व करने के बाद हमको minus 4p आना चाहिए. यू कैन चेक इट राइट ना. तो minus 11p plus 7p या 7p minus 11p यहाँ रख सकते हो. 7p minus 11p, अदरवाइज minus 11p plus 7p, किसी भी फॉर्म में पुट कर दो. बट उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी minus 4p. सो यू आर गेटिंग, सो देखो यहाँ पुट किया p स्क्वायर minus 11p plus 7p minus 77. फिर ये देखो फर्स्ट टू एंड दिस लास्ट टू. फर्स्ट टू में कॉमन करो. व्हाट इज कॉमन, p. अगर हमने p कॉमन किया, यहाँ मिल गया p minus 11 होगा. और फिर देखो यहाँ प्लस 7 कॉमन होगा. करेक्ट ना. व्हाट इज रिमेनिंग, p minus 11. एंड सो व्हाट इज कॉमन, p minus 11 कॉमन हुआ. रिमेनिंग p plus 7. So these are the factors of this question. This is the question number 22. Next question, question number 24. Next question, question number 24. I will explain here question number 24. Question number 24 is given x square minus 11x minus 42. Okay, means टू फैक्टर ऑफ 42 जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 11. नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ फैक्टराइज कर लिया करो. आई हैव एक्सप्लेन दैट मेथड. ये देखो 20 में, बट अभी भी नहीं मिला. 3 से डिवाइड करो 7. देखो अभी इसमें एडजस्ट करना है कि जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 11. सो देखो ये 3 2 6, 7 minus 6 1 हो जाएगा. अगर हम ये लेते हैं साथ में 2 into 7 कितना हुआ 14, और ये हुआ 3. 14 minus 3, क्योंकि ये 14 minus 3 इक्वल टू 11. करेक्ट. साथ में x रखेंगे 14x minus 3x, तो ये तो हो गया 11x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं. बट ड्यू टू दिस माइनस, देखो हमने बताया था ये जब माइनस होगा इससे इफेक्ट क्या होता है, इस माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ माइनस और ये हो गया प्लस. तो क्या रखने वाले हैं minus 14x plus 3x. एट द प्लेस ऑफ minus 11x क्या रखना होगा minus 14x plus 3x. जिसका सॉल्व करो तो क्या आएगा minus 11x. सो पुट इट राइट. सो देखो ये मिला x स्क्वायर minus 14x plus 3x minus 42. फिर ये देखो फर्स्ट टू एंड दिस लास्ट टू. व्हाट इज कॉमन इन दिस टू, x. क्या मिला x minus 14 प्लस यहाँ देखो क्या कॉमन हुआ 3. व्हाट इज वेटेड, x minus 14 होगा ना. 42 को 3 से डिवाइड करो, x minus 14. सो अगेन x minus 14 is common into here x plus 3. So these are the factors. This is the question number 24. Next question, question number 26. I will explain next question, question number 26. Question number 26. And question number 26 is given y square minus 6y minus 135. अभी तो 135 के टू फैक्टर्स लेना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 6. सो 135 को देखो ये सम टाइम डायरेक्टली नहीं ओरली नहीं आता है, तो इसको फैक्टराइज करो. 5 से किया 5 2 10 एंड 5 7 राइट ना. फिर ये 3 से कर सकते हैं, 3 से कर लो, यहाँ हो गया 9. और इसके फिर यहाँ ट्राई करो जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए. तो 5 3 15, 15 minus 9 6. करेक्ट ना. तो 15 minus 9. देन गो y, तो साथ में y रखना होगा 15y minus 9y.
अगर ये प्लस होता तो हम ये पुट कर देते, बट दिस इज माइनस, देयरफॉर ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस हो गया और ये हो गया प्लस। क्या रखेंगे? माइनस 15y प्लस 9y। देखो मिला y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 9y माइनस 135। फर्स्ट टू, व्हाट इज कॉमन इन दिस? y। क्या मिला? y माइनस 15। यहाँ देखो कॉमन क्या हुआ? प्लस 9 कॉमन होगा, क्या मिलने वाला है? 135 को 9 से देखो डिवाइड करो तो ये मिलेगा ना 15, सो y माइनस 15। सो ये सेम आना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आया मींस यू हैव डन सम रॉन्ग। सो बीच में यू आर गेटिंग अ स्टेप जहाँ पे चेक कर सकते हो तुम्हारा स्टेप करेक्ट है या नहीं। दिस मस्ट बिकम सेम, तो वी आर गेटिंग सेम। सो व्हाट इज कॉमन? y माइनस 15 इनटू y प्लस 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। This is question number 26. Next question, question number 28. I will explain. Next question, question number 28. And question number 28 is, question number 28, it is given. Look the question in your textbook. X square minus 4x, x square minus 4x minus 12. जब इस क्वेश्चन में ट्राई करो व्हाट मे बी द फैक्टर्स ऑफ 12 जिसका डिफरेंस 4 हो जाए। तो फैक्टर देखो 12 4 3 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 एंड 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 क्या होता है? 4। तो क्या हो सकता है? 6 माइनस 2। साथ में x लेना होगा 6x माइनस 2x एंड इफ दिस इज माइनस साइन, इस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस और ये हुआ प्लस। तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। करेक्ट ना? in first two and this last two, what is common in this? x। क्या मिला? x minus 6 plus 2 common, what is remaining? x minus 6। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 मिलेगा, so x minus 6, what is common again? x minus 6 into x plus 2, correct ना? x plus 2, right? So this you got, so that this is the answer of this question. Next, I will explain next question. Question number 30. 30. Question number 30. And question number 30 is given 3y square. 3y square plus 14y plus 8. 3y square plus 14y plus 8. Look, अभी तक till now you solve so many question, in all question you are getting A1, but यहाँ A3 आ रहा है और C क्या है? 8। 8 और 3 का प्रोडक्ट हमने बताया था, तो 3 को 8 में मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 24। अब इस 24 के 2 फैक्टर्स लेने हैं जिसका प्रोडक्ट 24 हो एंड इट्स सम मस्ट बी 14, जिसका सम क्या हो जाए? 14, ऐसा लेना है। तो 24 ओनली अगर समझ में आ गया, नहीं तो प्राइम फैक्टराइज करना। 12 2 जा 24 एंड 12 प्लस 2 14, तो साथ में क्या लेना होगा? y। तो 12y 2y और ये प्लस साइन होगा तो नो प्रॉब्लम, यही रखना है ना, 12y प्लस 2y। तो देयरफॉर 3y स्क्वायर 14y के प्लेस पे रखेंगे 12y प्लस 2y प्लस 8, करेक्ट ना? एंड देन टेक द कॉमन इन फर्स्ट टू एंड देन लास्ट टू। व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू? कॉमन क्या हो रहा है फर्स्ट टू में? तो फर्स्ट टू में कॉमन हुआ 3y एंड इफ यू टेक 3y कॉमन, तो देखो यहाँ मिला y प्लस 4 होगा और इन द लास्ट टू व्हाट इज कॉमन? 2, और अगर 2 कॉमन कर लो तो क्या मिला? y प्लस 8 को 2 से डिवाइड करो, देखो अगेन वी आर गेटिंग सेम ना, सो y प्लस 4 कॉमन इनटू 3y प्लस 2। So dear student, this is the question number 30th. So you need to try the till question number 30, at least till question number 30. Remaining question of that I will explain in the next class. So solve till 30. Those of you not done the 5 up to 5, that also you need to solve. Means up to 30 question you need to complete it, and next day inform to me how many of you completed till the question number 30th. Okay, so in next class I will explain the remaining questions.